Good morning, friends. I am Anushka Raj, and this is my first session with you all. I know you all have enjoyed so many festivals which have gone, like Diwali and Chhath Puja. Okay, so this is my first session. So let me first introduce myself to you all. I am Anushka Raj, and I am going to teach you all bio. Okay, so the first chapter which I am going to start is Reproduction in Plants, that is the 10th chapter of CBSE class 7. Okay, I'll only teach you all in standard 7 class. Okay, so in class 7, I'll teach you firstly reproduction in plants. Okay, and in this session there will be so many question panels and you will enjoy this lesson very much. Okay, so let's start with reproduction in plants first. Without delay, let's start it. So first question I want to ask you all so that you get introduced to this chapter is, do you know what is replication? क्या आप जानते हैं कि replication क्या होता है? Okay. Replication means that to make the exact copies of the parent. To make the exact copies of the parent. Okay, so replication means that to make the exact copies मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. ओके, मतलब आपके पेरेंट जैसे दिखते हैं एकदम वैसे ही लुक आप में आएगा. ओके, so the young ones which will be formed, they will be just like the parent plants. Okay, so in replication you must know what is exact copies. Okay, this exact copies is very important in replication. Let me put on the next question. Okay, the next question is, do you know the difference between replication and reproduction? After I have told you what is replication, you must know what is the difference between these two. Okay, so the difference between these two is कि replication में मैं क्या बोली कि exact copies form करेगा. Okay, मतलब exact copies की मतलब उसमें कोई change नहीं आएगा. There will be no change at all in the young ones. But whereas in reproduction, there will be some changes. There may or may not be changes. Okay, either it can be. Okay, so reproduction mainly, the definition is that reproduction means to produce the young one from the parent. Okay, so let me write it down. First of all, I want to tell you that reproduction is a chemical process because the chemical activities occur now. That is why reproduction is a chemical process. Chemical process it is. Okay, reproduction is a chemical process, and as I told you, reproduction means that to produce a young one. Okay, to produce a young one from the parent. Okay, you can also write from the parent, or you cannot write also because young one will always produce from a parent only ना. कि reproduction एक chemical process है, physical नहीं है, क्योंकि physical में तो केवल state ये सब change होता है, लेकिन chemical में तो आपका सारा chemical properties change होता है ना. तो ये chemical process है. Reproduction is a chemical process, and what is the actual definition of reproduction? कि वो प्रोड्यूस करता है यंग वंस को. ठीक है, बात समझिए कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यंग वंस को, सिर्फ इतना. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि यंग वंस प्रोड्यूस होता है. वेरास रेप्लिकेशंस में एग्जैक्ट कॉपीज, इसमें भी प्रोड्यूस होता है यंग वंस ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें एग्जैक्ट कॉपीज होता है. ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है. इसमें भी प्रोड्यूस होता है, इसमें भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज इसमें फॉर्म होता है. इसमें कोई आपको फिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट कॉपीज ही फॉर्म होगा या फिर नहीं ही होगा, दोनों होता है इसमें. ओके, लेट्स गो deep inside this chapter. Okay, there will be lots of fun in studying this chapter. Okay, this is actually bio is a very interesting subject. Okay, and this chapter is moreover interesting. Okay, so let me tell you what are the types of reproduction.
टाइप्स ऑफ reproduction. Okay, so actually we can do the reproduction through three types. One is asexual means, sexual means, and vegetative propagation. Okay, so asexual, sexual and vegetative propagation. क्या होता है asexual में, sexual में और vegetative propagation में? Okay, we are going to learn about these all. सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या दो होता है. कोई बुक में ऐसा लिखा होता है. इन सम बुक्स इट इज गिवन ओनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इन सम बुक्स इट इज गिवन दैट थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर. ओके, समटाइम्स इट इन some book it is written only two and some book it is written three types of reproduction. But actually क्या होता है कि दो ही type of reproduction होता है. There are only two types of reproduction. But still in lower classes you may learn that there is a third type also, that is vegetative propagation. Okay, but actually vegetative propagation is a type of asexual means only. Okay, you will learn that vegetative propagation is a asexual type of reproduction only, but it is a vast topic. That is why in lower classes we study it separately. Okay, so this is the first one, this is the second, and this is the third one. Okay, so let me just give a brief look to, let's take a brief look to asexual means of reproduction. Okay, first point I want to tell you all, ये बहुत ही important point है. Okay friends, this is a very important point that I am going to write over here. See what I have written. Produced through only one parent. So in asexual means what happens is that कि the young one, ओके जो यंग वन जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, केवल एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होता है. ओके, जो एसेक्सुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट कि द रिप्रोडक्शन व्हिच अकर्स ओके इज ओनली थ्रू वन पेरेंट. There is no need of two parents to be involved in this chemical process. Only one parent is sufficient for this. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि our mother and parent are there. From them there are two parents. Okay, from them we are produced, isn't it? कि मतलब उनसे दो पेरेंट है ना हम लोग के, एक मदर एंड एक फादर है, तो दोनों को मिला के हम प्रोड्यूस हुए हैं. हम लोग चिल्ड्रन जो है हम दो पेरेंट को मिला के प्रोड्यूस हुए हैं. तो इसमें दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट है. सेक्सुअल हो गया ये, ठीक है. लेकिन वेराज सेक्सुअल में केवल एक ही पेरेंट चलेगा, हो जाएगा, या तो मेल या तो फीमेल. कोई सेक्स का कोई बात नहीं है इसमें कि मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगा तभी प्रोड्यूस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इसमें क्या है, केवल एक पेरेंट हो जाएगा तो हो जाएगा काम, इसमें हो जाएगा, बन जाएगा काम, ठीक है. जहां की जब ये जो सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट आर रिक्वायर्ड, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. सॉरी, whereas इसमें two parents are involved. Okay, इसमें क्या होता है, sexual means of reproduction में क्या होता है, two parents are involved. Okay, let me just take this. Yeah, in this sexual means only two parents are required, whereas in asexual means of reproduction only one parent is required. Okay, in sexual means of reproduction only one parent is required. अब देखते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में क्या होता है बच्चों कि आप नाम से ही समझ जाओ. वेजिटेटिव लिखा हुआ है ना, वेजिटेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे. वेजिटेटिव में क्या होगा कि केवल वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, केवल वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ध्यान में रखना कि केवल वेजिटेटिव पार्ट ही रिक्वायर्ड है इसमें. ठीक है,
इसमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें 1 पेरेंट रिक्वायर्ड है। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे ना, वी वर स्टडिंग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So vegetative propagation only occurs in plant, only and only occurs in plant, because here vegetative part is required, whereas in plants we find these vegetative parts and in human beings we don't find any vegetative parts. Okay, because क्योंकि तो stems और branches सब तो plants में होते हैं, हम लोग में तो नहीं होते हैं. Like roots, stems, branches, okay, leaves, they are found in plants, whereas we don't have those parts, na. That is why we don't show this type of particularly reproduction. Okay, this only occurs in plant. Occurs in plants. Is it? ठीक है, ये हो गया ना कि asexual केवल 1 पेरेंट के लिए होता है, सेक्सुअल 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेजिटेटिव में वेजिटेटिव पार्ट्स आर रिक्वायर्ड. ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे कि देखो, अच्छा यही पर बता दे रहा. इसमें क्या होता है कि इट इज द सिंपल प्रोसेस. ठीक है, सेक्सुअल में देखो 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड ना, इसमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड है ना, तो इसमें 2 पेरेंट. अच्छा एक और बात, इसमें 2 पेरेंट्स कौन, केवल मेल मेल नहीं या फिर फीमेल फीमेल नहीं, मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ सेक्सेस आर रिक्वायर्ड. दैट इज द मेल वन एंड female, both 2 parents that are involved are male and female sex. Okay, now let's talk about asexual means. Actually asexual is don't have variations. Okay, asexual में क्या होता है कि इसमें variations नहीं आते हैं. Don't have any variation. ठीक है, they don't have any variation. Okay, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानो. ये जो वेरिएशन है ना, बहुत सिंपल नाम है. ठीक है, वैरी तो आप जानते होंगे, वैरी का मतलब क्या होता है, चेंज करना, है ना. तो उस वैरी वर्ड से ही तो वेरिएशन बना है ना. ओके फ्रेंड्स, सो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, डोंट टेक इट सो हार्ड. ओके, वेरिएशन का मतलब होता है कि द चेंजेस which occur during the process. Okay, actually variation means the changes which occur during the process. ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है ना, कि जो चेंजेस आते हैं यंग वंस में, जो चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस हो रहा होता है, उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं ना, द चेंजेस विच अकर इज नोन एज वेरिएशन. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि वेरिएशन वो चेंजेस होता है बायो के लिए वेरिएशन वो चेंजेस होता है जो कि अकर करता है प्रोसेस के बिटवीन में. ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, उसके बिटवीन जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन. ठीक है, अब देखो, अब ये वेरिएशंस आएंगे कैसे, क्वेश्चन तो ये भी आता है ना फ्रेंड्स कि ये वेरिएशन कहाँ से आएंगे. सो देयर इज अगेन अ क्वेश्चन पैनल टू यू ऑल कि where do these variation come from? Let me put up a question panel. You all know what is variation. Okay, very nicely you all know that what is variation. I will tell you all what are the examples of these variations. Okay, don't worry about that. हम आपको ये भी बताएंगे कि examples कैसे कैसे कहाँ पे यूज होते हैं. ठीक है, पहले ये मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि where do these variation occur, कहाँ यूज होते हैं, कहाँ अकर करते हैं भाई.
क्वेश्चन है कि ये जो वेरिएशन है ना ये कहाँ आकर करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि ये जो वेरिएशन है ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये डेली लाइफ में आपके सामने है। ओके, आई गिव यू दिस मच हिंट एंड टेक योर टाइम, स्टॉप द वीडियो एंड देन जस्ट think about this question. So the answer to this question is that variation occurs in yourself. Okay, whenever the two parents are there. Okay, आप लोग जानते हो ना कि डीएनए क्या होता है ना? डीएनए is all over in our body. डीएनए तो हम लोग का पूरा बॉडी में ही है, ठीक है, ब्लड में होता है डीएनए ना। अभी देखिए जो डीएनए होता है ना, क्या होता है इसमें कि जब टू पेरेंट्स है रिक्वायर्ड, मतलब क्या, टू पेरेंट्स है रिक्वायर्ड मतलब क्या, ये सेक्सुअल फॉर्म में आ जाइए अब आप, ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म में आ जाइए, मतलब सेक्सुअल फॉर्म में ही आपका वेरिएशन आकर करता है। जब भी टू पेरेंट्स रहेगा, एक सोचो जब एक पेरेंट रहेगा तो उसमें वेरिएशन ही क्या होगा, ठीक है, जब एक पेरेंट रहेगा तो उसका वेरिएशन ही क्या होगा उसका। जब देखो क्या होता है कि दो पेरेंट रहता है तो दोनों का जो सेल्स है वो जब मिलता है तब ना एक यंग वन बर्थ करता है। तो सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि दोनों का एक एक सेल जो है वो दोनों फ्यूज करता है, फ्यूज मतलब मिलता है, और एक यंग वन का सेल प्रोड्यूस करता है, और फिर वो सेल आगे जाके प्रोड्यूस होके वो पूरा बॉडी बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों सेल जो है ना मिलता है ना तब आपका वेरिएशन आकर होता है। जैसे आपकी मम्मी एंड पापा है, आपका मतलब मदर एंड फादर है, ठीक है, तो क्या होता है वो दोनों क्या, मतलब वो दोनों क्या आप एकदम सिमिलर लगते हो, नहीं ना, मतलब कि आप एकदम अपनी मम्मी के जैसे लगते हो, नहीं, आप एकदम अपने फादर के जैसे लगते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि वो दोनों का सेल्स मिला उसके बाद आप बने ना, इस वजह से आप ना तो अपने मदर की तरह दिखते हो ना तो अपने फादर की तरह दिखते हो, ठीक है। यहीं पर आता है वेरिएशन, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। आपका जितना भी चेंजेस आया है बॉडी में, आपके मदर एंड फादर से जो चेंजेस आया है आप में, वो सारा हो जाता है वेरिएशन, ठीक है। जहां कि आप लोग खुद सोच सकते हो कि ये जो वन पेरेंट जहां रिक्वायर्ड होते हैं वहां कैसे वेरिएशन आएगा, आप ही सोचो थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो पॉज करो और सोचो अच्छे से एकदम कि जब केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, केवल एक पेरेंट, उसका मतलब उसका ये जब दूसरा यंग वन बर्थ लेगा तो क्या उसमें क्या वेरिएशंस आएगा। हाँ, कभी कभी वेरिएशंस आ जाता है, कैसे आता है, क्योंकि जब उसको डीएनए मतलब उसको फिर से डीएनए रेप्लिकेट करना होता है ना, रेप्लिकेट हम स्टार्टिंग में ही बताए थे क्या होता है रेप्लिकेशन, क्योंकि जब डीएनए उसको डुप्लीकेट बनाना होता है, डुप्लीकेट या फिर रेप्लिकेट करना होता है ना उसको डीएनए, वो जो सेल है वो, ठीक है, जो सेल है एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ मीन्स कर रहा है, उसको जब डीएनए बनाना होता है, यंग वन के लिए डीएनए बनाना होता है, तब वो डीएनए बनाते बनाते ना कभी कभी कुछ गड़बड़ी आ जाता है, देयर आर सम चेंजेस, ओके, कुछ चेंजेस आ जाता है, गड़बड़ी हो जाता है बनाते बनाते वो सेल में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, उस यंग वन में, एसेक्सुअल में बहुत कम वेरिएशन आता है, बहुत कम, ना के बराबर, एकदम, इसलिए हम लिखे हैं डोंट हैव एनी वेरिएशन, जहां की हम सेक्सुअल में लिखेंगे हैव वेरिएशंस, ठीक है। हम यहाँ पे मेल और फीमेल मिटा दे रहे क्योंकि आप लोगों को तो पता है टू सेक्सेस कौन सा है, एक तो मेल है एक तो फीमेल है, इज इट ना, आप ये ला मिटा के बोला पॉइंट लिख दे रहे हैं, have variations, they have the variations, remember that asexual reproduction have variations, this is a very good question that can even come in your exam, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अगर हम लोग आ जाए तो क्या होता है कि हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो एक एसेक्सुअल का फॉर्म ही है, ठीक है। आप कोई भी बुक में पढ़ो तो उसमें लिखा रहता है कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मींस, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमने लिख ही दिया कि एसेक्सुअल मींस में कोई वेरिएशन अगर नहीं करता है तो ऑब्वियसली ना कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में भी कोई वेरिएशन अगर नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, दैट यू विल रिमेंबर, ओके, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मींस, टाइप ऑफ एसेक्सुअल मीन्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल, पूरा क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, पूरा तरीके से क्लियर है, कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट, ओके, एनी डाउट यू हैव प्लीज कमेंट मी। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं सभी के बारे में,
थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में तो और जाना है हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं जानेंगे, कुछ एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का बेसिक्स नहीं जानेंगे तो और डीप कैसे जाएंगे, है ना। तो उन लोग का बेसिक्स हम लोग को देखना है, सीखना है, इस वजह से हम अब और थोड़ा सा बेसिक जा रहे हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो मैंने अभी बताया वो मैं रब कर दे रही हूँ। अच्छा, इसको भी रब करके लिखिए दे रहे हो फिर से, बिकॉज इट इज वेरी मच वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ठीक है, इज इट क्लियर, है ना। हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब देखो एसेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में, और हम लोग थोड़ा सा और बेसिक्स जान ही लेते हैं, अभी इतना कर लेंगे उसके बाद फिनिश। ओके, एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल मींस हो सकता है, मतलब ना कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हो सकता है। तो सेक्सुअल मींस कैसे अकर करेगा, कैसे होगा, वन पेरेंट से होगा। तो वन पेरेंट बहुत तरीके से ना वन पेरेंट हो सकता है। तो स्पोर फॉर्मेशन से एक हो सकता है, एक तरीका है एसेक्सुअल मींस को करने का, बर्डिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर बर्ड फॉर्म करके, थ्रू बर्ड फॉर्मेशन, थ्रू बर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और दे रहे हैं, और क्या हो सकता है, थ्रू फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन, फ्रैगमेंट फॉर्मेशन कब होता है, फ्रैगमेंटेशन में होता है ना। ये सब हम लोग सब चीज जानेंगे बाद में। ठीक है, उसके लिए अभी हम लोग को कोई मतलब वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इन सब चीज से होता है, और भी बहुत सारा चीज से होता है। ठीक है, बहुत सारा, जैसे फिजन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन है, रीजेनरेशन हो जाता है इसमें, तो वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी जानते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, बर्ड फॉर्मेशन हो सकता है, फ्रैगमेंट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों से एसेक्सुअल मींस हो सकता है। अब आ जाते हैं सेक्सुअल में। हमने क्या कहा था कि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इज इट। ठीक है, अब 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, फॉर्मेशन को मिटा दे, ये सारा चीज रहेगा तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल वाला। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सेक्सुअल में क्या होता है, जो मेल सेल होता है ना, ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो मेल सेल होता है, ठीक है, मेल सेल मतलब क्या, कि जो फादर का सेल होता है, ठीक है, मेल सेल होता है, वो किससे जाके फ्यूज करता है। फ्यूज मतलब हम बताए ना, बीच में वीडियो का बताया है हम कि फ्यूज मतलब टू गेट टुगेदर। गेट टुगेदर मतलब एक साथ आना, फ्यूज करना मतलब एक साथ आना। ठीक है, ओके, फ्यूज मतलब एक साथ आना। तो मतलब मेल सेल जब फीमेल सेल के साथ आता है तब बेबी young one is produced. Young one is produced. ठीक है, young one is produced। आपको समझ में आया कि जब मेल सेल फीमेल सेल के साथ फ्यूज करता है तब young one का फॉर्मेशन होता है। अब देखो क्या होता है कि सारा ये जो मेल सेल है और फीमेल सेल है उनको भी कुछ बोलते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल सेल है ना, उनको गैमीट्स हम लोग एक नाम दे दिया जस्ट ताकि रिमेंबर कर सके, गैमीट बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि मेल सेल को क्या बोलते हैं और फीमेल सेल को क्या बोलते हैं। इन दोनों का नाम होता है गैमीट्स। गैमीट्स, ठीक है, और ये जो यंग वन का सेल होता है ना,
यंग वन का जो सेल होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। Say with me, pronounce it, okay? Otherwise you will forget it, okay? Pronounce it with me. Male cell and female cell are called gametes. What are they called? Gametes, okay? And the young one which is produced is known as zygote. Okay, the cell which is produced from them is known as zygote. Okay, zygote. ये हो गया zygote और ये हो गया gametes. Okay, अभी देखो अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बता दिया टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें फ्यूजन होता है मेल और सेल और फीमेल सेल में। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फ्यूज करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। ये सारा चीज समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर विथ यू ऑल? ओके, लेट मी गो अहेड विथ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ठीक है, इफ यू वांट टू कॉपी दिस यू कैन कॉपी दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू रब। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी तो जगह चाहिए ना हम लोगों को। मैं इतना ही रहने दे रही हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा दिख जाए और ये भी दिख जाए। गैमीट्स से याद रखिए, गैमीट्स से जाइगोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट कैन कम इन योर एग्जाम। मैं बार बार आपको कह रही हूँ वो वाला चीज उतार लेना कि मेल और फीमेल सेल को गैमीट्स बोलते हैं और यंग वन सेल को जाइगोट बोलते हैं। ओके, अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का जब हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमें आना चाहिए प्लांट के ऊपर, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ओनली अकर्स इन प्लांट्स। ओके, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन ओनली अकर्स इन प्लांट्स। तो जब मैं कहूं, व्हेन आई विल से दैट हाउ मेनी पार्ट्स डू अ प्लांट हैव, कितने पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, तो आप बोलेंगे कि स्टेम होता है, ब्रांच होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है। आई डोंट वांट ऑल दोस। इफ आई से दैट ब्रॉडली क्लासिफाई अ प्लांट, बहुत बड़ी तरीके से क्लासिफाई करो किसी दो ही चीज में, तब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? you'll have to classify that plant into two bases. Is it? Two bases, not only one basis but two parts. Is it? Let me show you. I hope so you have written this sexual one क्योंकि वो बहुत ही important है। ये जो प्लांट है ना, प्लांट को हम लोग टू पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको बांट सकते हैं हम किस में? वेजिटेटिव पार्ट्स में, और इसको हम डाल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। आई होप सो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने किस बेसिस पर इन सबको प्लांट को डिवाइड किया, किस बेसिस, क्या तरीका से मैंने इन दोनों को प्लांट को डिवाइड किया इन दोनों पार्ट में। ठीक है, व्हाट इज द बेसिस? द बेसिस इज दैट वेदर द पार्ट रिप्रोड्यूस और नॉट। ओके, कुछ पार्ट्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते और कुछ पार्ट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हम लोग जानते थे कि फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और द सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि फ्लावर्स, ईदर फ्लावर्स और सीड्स रिप्रोड्यूस, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन सा है फ्लावर्स है और सीड्स है। हम लोगों ने अभी तक तो यही दोनों जाना ना। अब हम लोग जानेंगे कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा जो कि फूड स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। फूड कौन कौन से पार्ट स्टोर करते हैं बच्चों? मतलब फूड स्टोर कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं आप फूड स्टोर करते हैं, लेकिन आप ज्यादा बोल सकते हैं कि जो पार्ट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मैं उन पार्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो पार्ट्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, कौन कौन से पार्ट्स हैं? स्टेम है, और कौन से रूट्स है, और कौन सा है? लीव्स है, तो आज हम क्या करेंगे, कभी कभी ना क्या होता है कि आई एम टेलिंग यू अ सिचुएशन। ठीक है, ओके, समटाइम्स इट हैपेंस दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैव सम मिसबिहेव। Okay, so reproductive parts sometimes do not reproduce. Sometimes
these reproductive parts have some misbehave. Okay, they misbehave sometimes, and thus they do not reproduce. Okay, thus they do not reproduce. So what happens कि क्या होता है कि उस समय वेजिटेटिव पार्ट्स इनका काम करने स्टार्ट कर देते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम करना स्टार्ट कर देते हैं. उन लोग क्या करते हैं कि जब फ्लावर्स और सीड्स नहीं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर सीड्स नहीं हो रहा है, या फिर फ्लावर उस प्लांट में नहीं है, तब वो लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेम, रूट्स और लीव्स से अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं कि किस चेन में बंधा हुआ है ये प्लांट. अगर ये नहीं करेगा तो ये कर देगा, अगर ये नहीं करेगा तो ये कर देगा, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा है, ठीक है, आई विल डू, ओके, जैसे ओके दे विल डू. सो क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में आप लोग समझ ही गए होंगे कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में होता होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है ना. ओके, दैट द वेजिटेटिव पार्ट्स स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग इन वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. ओके, अंडरस्टूड. सेक्सुअल आप लोग समझ गए कि मेल और फीमेल गैमीट्स क्या करता है, फ्यूज करके एक जाइगोट फॉर्म करता है. ये सेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन होता है, बड फॉर्मेशन होता है, फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है. ओके, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में आप समझ गए कि वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है. समझ गए. आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है. ओके, for today it is sufficient for you all, so enjoy your day. Okay, so let me erase this thing. Okay, so I think this is sufficient for you all. You must have studied and enjoyed also. Okay, is it? Yeah, have you enjoyed all this session? Okay, so thank you for watching this video, and let's meet in the next video. Okay, so till that, take care of yourself in this corona period and take care of your family as well. Okay, so tata, bye bye.